آٹا 10 سے 20 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا۔ شہریوں نے حکومت سے قیمتوں پر مؤثر کنٹرول اور فوری ریلیف کا مطالبہ کیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی۔ آٹے کی قیمتیں 10 سے 20 روپے کلو تک بڑھ گئیں۔ شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ کراچی میں آٹے کی مختلف اقسام کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ریٹیل سطح پر 2.5 نمبر آٹا 130 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو، جبکہ فائن آٹا 145 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب کھلا چکی کا آٹا 20 روپے اضافے کے بعد 160 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 5 کلو آٹے کا تھیلا 720 روپے یا اس سے زائد قیمت پر دستیاب ہے۔ 3 روز میں تو تقریباً 50 روپے کا فرق آ گیا 10 کے جی کے اوپر، اور پر کے جی کے اوپر 10 روپے کا فرق آ گیا۔ وجوہات یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو گندم شارٹس رہتی ہے، ملرز کا کہنا یہی ہے کہ یار گندم گورنمنٹ سے مہنگی ہمیں ملتی ہے۔ اب یہ تو واللہ علم وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، پر ہمارے لیے شارٹنگ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ ہماری ڈیمانڈس 500 تھیلے کی تھی وہ ہمیں 250 تھیلا دیتے کہ گندم ہی نہیں ہے تو مطلب آٹا کیسے تیار ہوگا۔ تو مارکیٹ اس وجہ سے بہت زیادہ اپ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضرورت کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ مہنگائی کے باعث گھر کے اخراجات پورے کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کہ گھر کے جو راشن آٹا ہے تو گھر میں جس کے اگر 4 یا 5 بچے ہیں تو آپ 10 روپے کے حساب سے لگائیں۔ اگر جس کا پہلے 20 کلو لگ رہا تھا تو 20 کلو آٹا تو 20 کلو لگے گا، لیکن 10 روپے کے حساب سے دیکھو کہاں بات جا رہی ہے۔ تو عام آدمی غریب آدمی کو فرق پڑتا ہے۔ اس میں حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا ریلیف دے غریب عوام کے لیے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے سمیت اشیاء ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اسی پر مزید بات کریں، کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے آٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ آٹے کے گراں فروشوں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن شروع۔ منگل کے روز 187 دکانوں پر آٹے کی قیمتوں کی جانچ پڑتال۔ گراں فروشی پر 85 دکانداروں کو 7,77,000 روپے سے زائد جرمانے کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا ہے۔ گراں فروشوں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ منگل کے روز 187 دکانوں پر آٹے کی قیمتوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 85 دکانداروں کو 7,77,000 روپے سے زائد جرمانے کیے گئے۔ کراچی میں جرائم کی روک تھام، کمیونٹی پولیسنگ اور خواتین کے تحفظ کے فروغ کے لیے CPLC کے زیر اہتمام اہم سیمینار منعقد ہوا، جس میں مقررین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے امن و امان کے قیام میں عوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ CPLC کے زیر اہتمام سیمینار، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کی شرکت، جرائم کی روک تھام پر تبادلہ خیر۔ کراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف کا کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کا پولیس سے تعاون ناگزیر ہے۔ CPLC چیف زبیر حبیب کا کہنا تھا کہ موجودہ چیلنجز کے دور میں جرائم کا رپورٹ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پولیس کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ پولیس بے شک پولیس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ شہر میں، صوبے میں امن و امان قائم رکھے، لیکن جب تک عوام اس سے تعاون نہیں کرے گی وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ So I think I encourage people, a lot of people see a crime happening and they're shy to report it because they said, یار ہم کہاں جائیں گے پولیس اسٹیشن، یہ مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا۔ یہ اگر آپ نے حالات کو بہتر کرنا ہے تو کچھ اپنا کردار بھی ادا کریں۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت اور عوام کی باہمی تعاون سے ہی ٹریفک نظام مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کرائم اور منشیات شہر کے بڑے مسائل میں شامل ہے۔ This is a shared kind of responsibility. It's not only the traffic police or the state or the government who has to enforce it, rather you all have to embrace this system. یہ تبھی کامیاب ہوگا جب ہم ایز سٹیزنز اور ٹریفک پولیس اور گورنمنٹ اپنے ہاتھ ملائیں، اپنی عادات کو چینج کریں۔ You will have to tread the path and the journey always starts with the first step. ہمارے اس کام میں جب تک کمیونٹی کا ساتھ نہیں ہوگا ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ میئر کراچی مرتضیٰ آپ کا کہنا تھا کہ ضلع کی سطح پر CPLC جیسے اداروں کی ضرورت ہے، جبکہ اداکارہ بشرا انصاری کا کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ انسداد منشیات اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا بڑا فیصلہ، اربوں روپے کی بدعنوانی کے ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کرنے کا حکم۔ نیب کی درخواستیں منظور ہو گئی، احتساب عدالتوں کے ریفرنسز منتقلی سے متعلق فیصلے کل عدم قرار دے دیے گئے۔
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात और नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत का दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों की जवाबी कापियों की असर नो गैर जामबंदाराना जांच का हुक्म। तहरीरी हुक्म में करार दिया गया मुतल्लिका मज़ामीन के प्रोफेसर उम्मीदवारों की जवाबी कापियों की दोबारा जांच करें। अदालत ने नताइज से मुतल्लिक हुक्म अमतना में आइंदा समात तक तोसी कर दी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बरामदी सनती अदारों से सेल्स टैक्स वसूली का तनाज़ा। APZ में कायम 68 सनती अदारों के बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने APZ अथॉरिटी FBR के इलेक्ट्रिक वफाकी वजारत सनत व पैदावार और खजाना को नोटिस जारी कर दिए। जूस कंटेनर के जरिए मंशात दुबई स्मगलिंग करने का मुकदमा। इंसदाद मंशात अदालत ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुल कादिर और इम्तियाज अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी। सूबे भर में एंट्रा सिटी इजाफी किरायों की वसूली और सहूलियात का फुकतान। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त फ्रीकैन से अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। मियाँ बीवी का मंशात की स्मगलिंग करने का मुकदमा। और भी अदालत ने मुलजिमा बख्तावर की सजा कल अदम करार देकर बरी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कराची आमद। सरफराज बुगटी की कल्लात में शहीद होने वाले ASF अफसर कैप्टन वसीम के अहल खाना से ताज़ियत। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची के ताजिर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर की बलूचिस्तान में शहादत। बलूचिस्तान हुकूमत भी अफसरदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शोहदा की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कल्लात में अगवा के बाद शहीद होने वाले ASF के डिप्टी डायरेक्टर शहीद मोहम्मद वसीम के घर पहुँचे, जहाँ इन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की और फातिहा खानी की और कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी और इसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और विल तीनों चीज़ों में मौजूद हैं। इस मौके पर शहीद कैप्टन वसीम के बड़े भाई ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मरबूत लाहेमत बनाए ताकि हमारे जवान और दीगर शहरियों की जिंदगियाँ महफूज रह सकें। बलूचिस्तान में जो बेगुनाह लोग जा रहे हैं उनको किडनैप किया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इसको आप टेकअप करें। लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि हमारा भाई तो चला गया तो औरों को भाई ना जाए। सरफराज बुगटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे और दहशतगर्द अनासिर को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन अमजद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची के कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल की तीसरी मंजिल पर आग लगने का वाक़या। अस्पताल में धुआं भरने पर नन्हे मरीजों और अहल खाना को फौरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान हुआ। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। ICH में आतिशज़दगी का वाक़या। लाखों रुपए का सामान राख बन गया। नन्हे मरीज बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल। कराची में कायम कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल की तीसरी मंजिल पर आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया। वाक़े के फौरी बाद नन्हे मरीजों और उनके अहले खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जबकि फायर ब्रिगेड को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान हुआ है। पेशेंट के अटेंडेंट्स उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने वो देखा और उसके बाद जो है ना वो स्पार्क एकदम से जो है ना वो शिद्दत अख्तियार कर गया और आसपास जो है ना वो उसके होने क्या कहते हैं आग को थोड़ा उसने जो दिखाया, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने बर वक्त अमल किया और तमाम मरीज़ों को जो है ना वहाँ से जो है ना हमने मूव किया और तकरीबन ये है कि 20 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल जो है ना वो कंट्रोल में हो गया, तो सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल का कहना है कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक एक तीमारदार का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था और खदशा है कि मोबाइल की बैटरी फटने से आग लगी। उन्होंने बताया कि वार्ड से एक खराब शुदा मोबाइल भी मिला है, ताहम हतमी वजह तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। अभी जो देखा है तो हमें वहाँ पे एक मोबाइल फटा हुआ मिला है, यानी कि जो मोबाइल जैसे होते हैं एक तो जल जाते हैं और एक होता है जैसे कोई बैटरी वगैरह फटती है मोबाइल की तो दो टुकड़ों में पड़ा हुआ था। तो एक मोबाइल हमें उस हालत में मिला है। अब ये देखना पड़ेगा, ये हम कमेटी हमने तश्कील की है जिसके टेक्निकल कमेटी ये सारा चेक करेगी कि आया ये चार्जिंग की वजह से इस तरह हुआ है या कोई और अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसमें हमने कई के अफसरान हैं उनसे भी ताउन उसके कर रहे हैं वो लोग हमें, और वो भी हम एक रिपोर्ट बना के देंगे कि क्या सूरत हाल रही है और किस वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ के बयानात और दीगर शवाहिद की मदद से आग लगने की असल वजह मालूम की जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा और तालिबात का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंटर्नशिप के पैसे न मिलने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ऑडिटोरियम के सामने किया गया। नर्सेज ने कहा कि जब तक इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलेंगे एहतजाज जारी रहेगा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा व तालिबात ने इंटर्नशिप के पैसे न मिलने पर कॉलेज से अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक एहतजाजी रैली निकाली और फिर खूब नारेबाजी की और एहतजाज किया। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाद नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने एहतजाज करते हुए नर्सेज तलबा व तालिबात ने कहा कि अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग को वजीफा मिल रहा है, लेकिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेड इंटर्नशिप नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम इतना कुछ सोचते हैं और लास्ट में हमें ये बोल रहे हैं कि अनपेड है, ये तो गलत बात हुई। जैसे कि हम इतनी दूर दूर से आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, फी पे करते हैं, 4 ईयर हम फी देते हैं। जैसे कि मतलब हम हॉस्टल में रहते हैं, इतने सारे खर्चे 4 ईयर कंप्लीट करते हैं। पहले हमें ये यकीन दहानी करवानी जाती है कि हमारी इंटर्नशिप पेड हो चुकी है। जब हमारी क्लिनिकल का टाइम आता है, जब उसका शेड्यूल निकलता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये लाइन लिखी हुई होती है कि जो इंटर्नशिप है वो अनपेड है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो हमें लाइसेंस देती है, उसकी रूलिंग है कि जिस हॉस्पिटल से आपने पढ़ा है, जो आपका टीचिंग हॉस्पिटल है, पेड इंटर्नशिप देने की उसकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ नहीं दी जाती। तलबा व तालिबात का कहना है कि सालाना 1 लाख रुपए फीस भी अदा कर चुके हैं। हमारा इंटर्नशिप पेड 31,000 अदा किया जाए, क्योंकि दाखिले के वक्त बताया गया था कि इंटर्नशिप के पैसे अदा करेंगे, लेकिन अब इंतजामिया पेड इंटर्नशिप देने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा, रेट 300 रुपए किलो पर जा पहुंचा। शहरियों ने खुसूसन घरेलू खवातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडी में टमाटर की सप्लाई कम और आने वाला माल मयारी नहीं है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुरख टमाटर ने आवाम का बजट भी सुरख कर दिया। शहर भर में टमाटर के दाम आसमान को छूने लगे। टमाटर 100 रुपए किलो तक महंगे हो गए। बाजार में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। घरेलू खवातीन कहती हैं कि टमाटर तकरीबन हर सालन का लाजमी हिस्सा है, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अब इसे जरूरत के मुताबिक खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सारी परेशानी यहीं पर आके खत्म होती है। कोई एक चीज तो सस्ती हो, हर चीज में आग लगी हुई। हरी मिर्चें देख लो कहाँ गई हुई, 70-80 रुपए पाव। टमाटर देखें आप, 200 रुपए किलो चल रहे हैं, 250 रुपए किलो। बंदा क्या खरीदे? रक्षा चलाने वाला जो 600-700-800 रुपए कमा रहा है, वो दाल दलिया पूरा करे या फिर इन चीज़ों को खरीदे? टमाटर की कीमतों में इजाफे से सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि सब्जी फरोश भी परेशान दिखाई दिए। दुकानदार कहते हैं कि मंडी में टमाटर की आमद कम हो गई है, जबकि आने वाले माल का मयार भी पहले जैसा नहीं, जिसकी वजह से खरीदारी महंगी पड़ रही है और इसका असर सार्फिन तक पहुँच रहा है। बात ऐसी है ना, आगे से माल नहीं आ रहा और जो आ रहा माल वो ख़राब हो रहा। मंडी में बहुत तेज़ी बाजार है। तकरीबन अभी इस वक्त जो है ना अच्छा टमाटर जो है मंडी के अंदर 300 लेके 290 रुपये किलो पड़ रहा है, और यहाँ जो हमारे पास लीस आ रहा है वो 200 का 205 रुपये का लीस बन रहा है। तो यहाँ कस्टमर भी हमारे साथ बेस करते भाई इतना रेट क्यों है, लीस में इतना रेट है, आप इतना रेट क्यों बेच रहे हो? अब आगे से महंगा रहा, जाहिर बात महंगे ही बेचेंगे, सस्ता तो कोई नहीं बेचेंगे। टमाटर जैसी बुनियादी सब्जी की कीमतों में इजाफे ने घरेलू बजट को मजीद मुतासिर कर दिया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इदारे मंडियों की निगरानी करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अमजद के साथ राबिया सदीद, सिटी 21।